Hello everyone, welcome to today's class. In today's lecture, we are going to start with a new chapter, acid, bases and salts. In earlier classes, you might have already learned about acids, what are bases and what are salts. Different foods taste different. Some foods taste sour, some food tastes bitter. So the taste of the food is due to the presence of acids and bases. When you taste a lemon, when you taste a lemon, okay, the lemon is sour in taste. Lemon खट्टा होता है. It is sour in taste. And when you taste soap साबुन जो है, that is bitter in taste. Lemon is sour in taste due to the presence of acid, and soap tastes bitter due to the presence of base. Okay, so acids are sour in taste and bases are bitter in taste. These are all things you might have already studied in earlier classes. Acids, they change blue litmus to red. Now what is this litmus? ये litmus क्या है? So litmus is an indicator, is a natural indicator. Litmus एक natural indicator है. ठीक है, इंडिकेटर मतलब कि इट इंडिकेट whether the substance is acid or base. And bases change red litmus to blue. Litmus is a natural indicator जो lichen plant से आता है. Lichen plant belongs to Thallophyta family. ठीक है, तो litmus जो है litmus solution, it is a natural indicator. Now what is an indicator? Indicators are substances, those substances which tell us whether a substance or whether a solution is acid or base. कि कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो कोई भी सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, एसिड है या बेस है वो बताता है. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नाम ये इंडिकेटर जो क्या करे, इंडिकेट करे. सो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि कोई भी एक सब्सटेंस जो हमें दिया गया है वो एसिड है या बेस है. ठीक है, अगर ब्लू लिक्विड सोल्यूशन है तो वो रेड हो जाता है इन केस ऑफ एसिड, एंड अगर रेड लिक्विड सोल्यूशन है तो इट टर्न्स ब्लू इन केस ऑफ बेस. ठीक है, नाउ इंडिकेटर सिर्फ लिटमस ही नहीं होता. लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. अपार्ट फ्रॉम लिटमस, टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी. ठीक है, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ करी स्टेन, ठीक है, करी कंटेन्स टर्मरिक. ओके, कोई भी ग्रेवी, ठीक है, कोई भी चीज जो हम फूड खाते हैं तो कोई भी करी का जो दाग लग जाता है, स्टेन लग जाता है, तो जब वो करी स्टेन के ऊपर अगर हम बेस लगा देते हैं, सोप, ठीक है, सोप लगाते हैं, तो इट बिकम्स रेडिश ब्राउन. वो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है. ओके, रेड कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है. एंड अगेन व्हेन वी रिंस इट विथ वाटर इट बिकम्स येलो अगेन. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज करी स्टेन में टर्मरिक प्रेजेंट होता है करी में, एंड दैट टर्मरिक जब उस पे बेस ऐड करता है तो वो एक इंडिकेटर है. तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है? इनटू रेडिश ब्राउन. एंड वाटर जो है, वाटर न्यूट्रल है, वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो वापस क्या हो जाता है? येलो. ठीक है, तो जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स आर neither acidic nor basic. सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, वो ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना बेसिक. वो कैसे होते हैं? सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, तो इट इज न्यूट्रल. तो neither एसिडिक होते हैं नॉर बेसिक होते हैं. नाउ सम एग्जाम्पल for acids and bases. Acids, hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4,
नाइट्रिक एसिड, HNO3, acetic acid, CH3, COOH. Okay, these are some etc. examples of acid. Now some examples of bases. NaOH, sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, CaOH whole twice, calcium hydroxide. Okay, so these are magnesium hydroxide, MgOH whole twice. So these all are examples for bases. So these are examples for acids and these are examples for some examples for bases. Okay, now when we do an activity, we take some acid solutions and some base solutions and we use indicator to test them. Okay, so when we take an indicator, synthetic indicator, phenolphthalein. Okay, phenolphthalein in case of acid and in case of base. Phenolphthalein in case of acid is colorless. Okay, in case of acid, phenolphthalein is colorless, and in case of base it becomes pinkish or purple. Say pinkish purple. Okay, pink or purple. Now methyl orange is another synthetic indicator. Okay, it becomes pink in case of acid and orange in case of base. Okay, so these are some indicators and this is how they indicate whether a substance is acid or base. Okay, by changing their color. Now, some indicators, they do not change color in presence of acid and base. But what they do, they indicate with the help of smell. Okay. Some indicators indicate with smell. Okay. They tell us whether a substance is acid or base with the help of smell. These such indicators are known as olfactory indicators. These are known as olfactory indicators. Okay. For example, onion. In case of an acid, there is no change in its smell. Okay. And in case of base, its smell vanishes. Means when you put some drops of acid on onion, there is no change in its smell. But when you put some drops of base, the smell of onion vanishes. Similarly, vanilla extract, vanilla. There is no change in case of acid in the smell, and in case of base, its smell vanishes. So such substances, they indicate the presence of acid or base with the help of their smell, and such indicators are known as olfactory indicators. Okay. So this is all with the introduction for acid, bases, salts and indicators about the chemical properties of acids and bases. Okay. So how do acids and bases, the first one is how do acids and bases react with metals. So we are going to do and we are going to look at an activity. So this is the setup for the activity. Now this is a test tube. In the test tube we have filled dilute hydrochloric acid. Okay, हमने dilute HCl fill किया है and उस HCl में, उस 5 ml HCl में we have added some zinc granules. तो zinc granules हमने उसमें add किए हैं. ठीक है. तो जब हमने डाइल्यूट HCl में जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किए तो हमने देखा कि एक गैस जो है वो इवॉल्व हुई, एक गैस निकली. ये जो बबल्स है ये उस गैस के हैं. तो कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो जब हमने HCl में जिंक ग्रैन्यूल्स डाले तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. ठीक है. तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. अब हम पता कैसे करेंगे कि ये कौन सी गैस इवॉल्व हुई है? हम उसे टेस्ट कैसे करेंगे? सो हम टेस्ट कैसे करते हैं
कि जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई तो विद द हेल्प ऑफ अ डिलीवरी ट्यूब, एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से उस हाइड्रोजन गैस को हमने पास करवाया थ्रू अ सोप सोल्यूशन, एक सोप सोल्यूशन में से। ठीक है, तो जब गैस सोप सोल्यूशन में आई तो सोप सोल्यूशन के बबल्स बने। ठीक है, जैसे बच्चे बनाते हैं ना सोप सोल्यूशन में से फूंक मार के बबल्स बनते हैं, तो वो ऑक्सीजन फिल्ड बबल्स होते हैं इनटू सोप सोल्यूशन। तो जब हाइड्रोजन गैस इसमें सोप सोल्यूशन में पास करवाई तो सोप के बबल्स बने। ठीक है, सोप सोल्यूशन के बबल्स बने। अब उन बबल्स, जो सोप सोल्यूशन के बबल्स बने, जब उन सोप सोल्यूशन के बबल्स के पास बर्निंग कैंडल लाई तो वो बर्निंग कैंडल वो बर्न हुई विद अ पॉप साउंड, उसने एक पॉप साउंड प्रोड्यूस किया। या बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं अगर हम, ठीक है, जलती हुई कैंडल या जलती हुई मैच स्टिक अगर हम सोप सोल्यूशन के पास में लाएंगे तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, एक पॉप साउंड आता है। ये देखो, ये ना मार्क है, ये दिस इज द मार्क फॉर अ पॉप साउंड। तो एक पॉप साउंड क्रिएट होता है। तो दिस पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो कैंडल बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, एक पॉप साउंड क्रिएट होता है। ओके, तो अब रिएक्शन क्या होती है कि जब भी कोई भी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, HCl एक एसिड है और जिंक एक मेटल है, तो जब भी किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो जो मेटल है वो क्या करता है, इस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अपनी जगह पे से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। और एसिड जो है, वो मेटल जो है, वो जो एसिड में हाइड्रोजन को हटा के जो उसका रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, मतलब जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन के साथ अटैच हो गया और बना लिया ZnCl2। तो ये जो उसने बनाया इसे हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो मेटल ने क्या किया, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ कंबाइन होके सॉल्ट बना लिया, और जो हाइड्रोजन था वो निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। ठीक है, सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन जो हो रही है। तो जब भी कोई एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है सो इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, जैसा हमने देखा अभी HCl प्लस Zn, तो क्या बनना, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2। ठीक है, वैसे ही अगर हम कोई दूसरा ले ले, H2SO4 ले ले, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर ले ले, तो दैट विल मेक CuSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी एसिड ले ले और कोई भी मेटल ले ले, तो मेटल क्या करेगा, उस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और वो हाइड्रोजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ बेसिस, ये तो हो गया एसिड का। सिमिलरली बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कि अगर हम इंस्टेड ऑफ HCl हम NaOH ले लें और उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करें तो वो भी सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और उसका सॉल्ट कुछ अलग होगा, NaOH प्लस Zn Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, दिस इज नोन एज सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सो दिस इज हाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ metal. Now the next topic is how metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid. ठीक है, so we are going to perform an activity. We are going to look at an activity and this is the setup. In a test tube, we take some sodium carbonate and we add dilute hydrochloric acid to it. ठीक है, तो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया
which is a metal carbonate, sodium metal का carbonate, and to this we add HCl, hydrochloric acid. Okay, so what happens? A gas is evolved, एक gas evolve होती है, ठीक है, which is passed through lime water, जिसे हम lime water से पास करते हैं, ठीक है। तो ये गैस जो है वो कौन सी है? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसे लाइम वाटर से जब पास किया जाता है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये क्या है? इट इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद एन एसिड? तो ये एसिड क्या करता है? जो मेटल कार्बोनेट है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और मेटल क्या करेगा? उसके साथ सॉल्ट बनाएगा। तो सोडियम क्लोरीन के साथ सॉल्ट बना के सोडियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी एंड H2O विल बी फॉर्म, ठीक है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसे टेस्ट कैसे करते हैं? इट इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? लाइम वाटर। तो जब इसे पास करते हैं सो लाइम वाटर टर्न मिल्की। लाइम वाटर पहले कैसा है? ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से पास करवाया तो लाइम वाटर मिल्क जैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्यों होता है? जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो जो मिल्कीनेस है दिस इज ड्यू टू द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्कीनेस आती है, मिल्क जैसा हो जाता है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड? ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास कर दे तब क्या होगा? तो पहले तो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे तो ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। फिर और कार्बन डाइऑक्साइड अगर रही और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई तो द मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ठीक है, जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी। क्यों डिसअपियर हो जाएगी? बिकॉज इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सॉल्युबल सब्सटेंस है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है दिस इज आस्क्ड, इस एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाट हैपेंस इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड। सो द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, and due to the formation of this calcium carbonate it becomes milky, and when excess of carbon dioxide is formed so calcium hydrogen carbonate is passed, sorry, when excess of carbon dioxide is passed then calcium hydrogen carbonate is formed, and due to the solubility of calcium hydrogen carbonate, since it is soluble, the milkiness disappears. Okay, so this is the test for carbon dioxide. Now moving on to the reaction. When metal carbonate is reacted with an acid, so it gives rise to the formation of a salt, carbon dioxide and water. So metal carbonate on reacting with acid forms salt प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, कोई मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं और कोई भी सॉल्ट, जैसे हमने लिया Na2CO3 प्लस HCl। तो मेटल क्या करेगा? एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, नाउ अगर हम मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले ले, और व्हाट वी कॉल इज मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी, और उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाए तब भी वो सेम चीज बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चाहे मेटल कार्बोनेट ले चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले। NaHCO3 अगर ले लिया हमने, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड HCl, it will make the same thing, NaCl plus CO2 plus H2O. So this is how acids react with metal carbonate and metal hydrogen carbonates or metal bicarbonates.